Welcome students. Today we are going to continue with the chapter number 7, permutation and combination. And in the last class we understood the whole concept of combination, correct? And based on that concept, today we are going to solve exercise 7.4. Correct. So let's have a look at question number 1. We'll try to solve as many as problem possible today, and we'll try to cover up the whole exercise as well. So let's start with question number 1. If NC8 is equals to NC2, find NC2. That's a good suggestion, correct? If I know what is NC8 equals to NC2, तो find करना है NC2 कितना होगा. So we know something, when NCA is equals to NCB, तो either A और B equal होगा या फिर N equals to A plus B. So I can easily understand that this 8 and 2 is not going to be equal. So NC8 equals to NC2 means N equals to 8 plus 2, that is 10. And if I get to know N is 10, so NC2 is going to be 10C2. So 10 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial, correct? And this becomes 10 factorial. Let me write like this. हम calculate कर लेते हैं ना, correct? So 10 into 9 into 8 factorial divided by 2. This get cancelled. 2 5s and 9 5s are 45. Correct. So what is going to be value of NC2? That is 10C2, and 10C2 is going to be 45. So we got N from this, and then we get the value of NC2. Simple. Let's have a look at question number 2. Now in question number 2, we are supposed to determine N, correct? If now there are two problems. First one is given something like this: 2nC3 is to nC3 का ratio we have provided is 12:1, correct? Now looking at this, we did something similar in the permutation as well, correct? So यहाँ पे भी वही करेंगे, we'll divide them, है ना? I can simply write this as 2nC3 divided by nC3 is equals to 12 divided by 1, correct? Now if I open this, so now see, to avoid confusion, what I'm going to do is I'm going to write bracket में 2n factorial, because sometimes what happens when you write simply 2n factorial, you may be thinking, okay, it's only n factorial, you can easily cut 2. No, you can't do that. This is 2n factorial divided by 3 factorial into 2n minus 3 factorial. Now I wrote multiply. I know कि divide में आता है, but multiply कैसे? तो क्या n factorial यहाँ पे n minus 3 factorial into 3 factorial is equals to 12 by 1. See, I can easily cut this 3 factorial, correct? Further क्या करेंगे? तो 2n minus 1 and 2n minus 2, because 3 factorial will get cancelled, into, अगर आप चाहो तो हम लिख भी लेते हैं, चलो let's write it down, minus 2 into 2n minus 3 factorial divided by 2n minus 3 factorial into, similarly I can say n minus 3 factorial, and let me write over here only. आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? Because it's not a big deal. n minus 3 factorial, and this will be n minus 1, n minus 2 and n minus 3 factorial equals to 12 by 1. So this factorial get cancelled, this 2 factorial get cancelled. And one more thing we can cancel now, n, because now it is 2n, it is not 2n factorial, correct? So it becomes 2 times 2n minus 1, 2n minus 2 divided by n minus 1 into n minus 2 is equals to 12 by 1, correct? Now if you observe properly, अगर ध्यान से देखो ना, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, जैसे कि if I take 2 common from this 2n minus 2, so it will become 4 times 2n minus 1 into n minus 1 divided by n minus 1, n minus 2 equals to 12. This 2 got cancelled.
So I got 2n minus 1 upon n minus 2 equals to 12 by 4 3. So this will become something like this. So 3n minus 2n n, 6 minus 1 5. For this we got the value of n equals to 5. So this is nothing new we are doing, just हमें क्या ध्यान रखना है, if it is a combination then n factorial upon n minus r into r factorial. If it was permutation then simply n factorial upon n minus r factorial. Once we get into this form, after that nothing matters, we are just simply looking to the get the value of n. Correct? So can I say question number 2 second one you people can do as homework. Question number 2 का second one, which is given as 2nc3 is to nc3 equals to 11 is to 1. Can you people do this as homework? Yes, definitely. I don't think so कि इसमें कोई भी difficulty होगी आपको solve करने में. Correct. Similar problem है 2nc3 nc3. Correct. Just instead of ratio 11 is to 1 is given rather than 12 is to 1. So छोटा सा changes है, not a big one. Correct. चलो, I hope you people can try and you can finally get the success. Correct. So I am going to leave this for you. फिलहाल you can pause the video and note this down. Now let's have a look at question number 3. As I told you yet that you must have textbook with you, otherwise it is going to be difficult. So definitely all the questions will be lengthy. So it is not going to be possible for me to write on the board. So if you have textbook, look in the textbook. क्या दिया हुआ है? How many chords can be drawn through 21 points on a circle? Correct. Now how can we understand? So we did one of this kind of example when we understood the concept of combination. Correct. कि suppose आपके पास एक circle है and on that circle how many points we have? 21 points. Now it is not going to be possible for me to put 21 points over here, and even if I put it, correct, I want to find out how many chords can be drawn using 21 points. Now we know to make a chord we need at least 2 points. Correct. ऐसे हम हर एक point से इस तरह से chord बनाते रहेंगे if we have 21 points, है ना? So to make a chord or to draw a chord we need 2 points. Between 2 points we can draw a chord. So how are we going to do this? So for drawing one chord on a circle, 2 points are required. एक chord बनाने के लिए हमें 2 points की जरूरत पड़ेगी. Now how many total points we have? 21. So we got to know that the combination of 2 points at a time will work out of 21 number of objects. So simply it becomes combination of 21 different objects taken 2 at a time. Are you getting me? उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है. So simply क्या लिखेंगे? Therefore there will be as many as combination. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? as many as chords, है ना? जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने chord बनेंगे. So there will be as many chords as there are combinations of 21 objects taken 2 at a time. Correct. That is 21c2. And if I want to calculate 21c2, I can definitely calculate 21 factorial divided by 2 factorial into 19. So 21 into 20 into 19 divided by 2 into 19 factorial. This to get cancelled, 2 tens, and 21 into 10 is 210. How many chords we can draw on a circle having 21 points? 210 chords is possible. Are you getting? So we did understood with the help of this kind of a problem the term called as combination. Correct. मैंने कहा था कि suppose consider a circle on which we have 7 points
here it is given 21 points, nothing changes at all. Instead of 7 we are just supposed to think 21. In that particular example I told you we have to take a 2 points to make a chord, so same thing I wrote, for drawing a one chord on a circle 2 points are required. करेक्ट. अब इसको ध्यान में रखते हुए 21 पॉइंट्स है तो हर एक के लिए कितने बनेंगे, देयरफॉर देयर विल बी एज मेनी कॉर्ड एज देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम. सो दिस विल बी इट. आर यू गेटिंग? इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. करेक्ट. चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू वी हैव? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? है ना. क्या करना है? We have to select 3 boys and 3 girls. लेकिन किसमें से? Out of 3 boys and 3 girls are selected out of 5 boys and 4 girls. 5 बॉय में से 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल में से 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है. तो कितने तरीके से कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. करेक्ट. नाउ हाउ मेनी बॉयज आई हैव? 5. हाउ मेनी आई वांट टू सिलेक्ट? 3. सो 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉयज इन 5C3 ways. कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3. सिमिलरली 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स इन 4C3 ways. करेक्ट. सो टोटल आई हैव 5 बॉयज. आउट ऑफ 5 बॉयज आई वांट टू सिलेक्ट 3 बॉयज. 4 girls I have and I want to select 3 girls. So 5C3 will be the for boys and 4C3 will be for the girls. So thus by multiplication principle, which principle? Multiplication principle, the required combination is 5C3 into 4C3. So 5 factorial divided by 3 and 5 minus 3 2 into 4 factorial divided by 3 factorial into 1, because 4 minus 3 is going to be 1. Correct. Now how can we proceed further? So simple calculation है ना, as we used to do in all the problems, here also we are going to do. So 5 into 4 divide by 3 factorial cut 2 into 1. 4 into 3 कट हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1. सो दिस विल गेट कैंसल. 5 2 10, 10 4 40. सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन 40 वेज? सीधी सी बात है ना. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आई गेस दिस वाज 4th one. सो लेट्स गो फॉर द 5th one. What do we have in the question number 5? Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red. है ना. Selection of 9 balls. लेकिन कहां से करना है? From 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. करेक्ट. लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा बोला है दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर. करेक्ट. ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर. हर एक कलर के कम से कम 3 बॉल तो आने ही चाहिए. मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि उसमें 3 रेड 3 व्हाइट और 3 ब्लू तो आने ही चाहिए. एंड इफ यू लुक एट 3 3 3 तो 9 तो ऐसे ही हो गए. करेक्ट. इसका मतलब क्या बोलेंगे कि 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इन
6C3 ways. Similarly 3 white balls. Correct. बाकी सब सेम from 5 white balls in 5C3 and similarly 5C3 for blue. है ना कि 3 ब्लू बॉल्स भी हमें इसी तरह से सिलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स. तो इसके अकॉर्डिंगली वापस क्या होगा बाय विच प्रिंसिपल? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आपका रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कितना आएगा? क्यों मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं? बिकॉज हमें टोटल 9 बॉल्स चाहिए और हमने 3 फ्रॉम ईच कलर लिए है. 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3. You will write the statement like we did in the previous problem. Thus, by multiplication principle, the required combination is 6C3, 5C3, 5C3. तो क्या हो जाएगा? 6 factorial divide by 3 into 3, 5 factorial divide by 3 into 2, and similarly 5 factorial divide by 3 into 2. करेक्ट. सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 into 4 divide by 2, 5 into 4 divide by 2. So 3 2s are 6, 5 4s are 20 into 10 into 10, because ये कट होके 2, ये कट होके 2, so 10 10 ही बचा. So 1 2 3, so 200 and 2000. Oh, there are 2000 combinations we will have, जिसमें 9 बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे. वो 6 रेड में से, 5 व्हाइट में से और 5 ब्लू में से 3 ईच कलर की होगी. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ बाय लुकिंग एट दिस यू मे बी थिंकिंग 2000 इज अ वेरी बिग नंबर, बट यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. है ना, हम आराम से ये कॉम्बिनेशन देखे तो इतना तो मिलना ही है. See, when you have a number of elements extra, number of objects are more, like 6 plus 5, 11, 11 plus 5, 17. 16. For 16 objects हमें सिर्फ 9 सिलेक्ट करने हैं, और वो भी कुछ इस तरह से कि तीनों जो कलर है उनके 3 बॉल ईच आए. तो ये तो फिर भी कम है. अगर आप टोटल सोचो, टोटल का मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कि 6 plus 5, 11 plus 6, 5, 16. 16C9. It will be even bigger number than this one. क्योंकि आपके टोटल कॉम्बिनेशन ही इतने ज्यादा होंगे ना, उसमें ये 2000 तो कुछ नहीं है, जिसमें ऑल 3 ईच, तीनों 3 कलर के 3 बॉल्स आने ही चाहिए. वो कंडीशन पे हमने ये सॉल्व किया है. आर यू गेटिंग मी? है ना, एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हमसे हो रहा है. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. What do we have in 6th one? Determine the number of 5 card combination. हमें 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन चाहिए. Out of deck of 52 cards, if there is exactly one ace in each combination, है ना, हमें क्या चाहिए? 5 cards combination. 5 cards combination out of 52 कार्ड्स आएगा, कार्ड नहीं आता है भाई, कार्ड्स, है ना. वी वांट 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 52 कार्ड्स. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है? इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस कार्ड, देयर इज एग्जैक्टली वन एस कार्ड इन ईच कॉम्बिनेशन, इन ईच कॉम्बिनेशन. करेक्ट. इसका मतलब कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं जो 5 कार्ड के होंगे, और उन 5 में एक कार्ड आपका एस का होना चाहिए. तो हाउ मेनी एस कार्ड वी हैव? देयर आर 4 एसेस कार्ड आर देयर. देयर आर 4 एसेस कार्ड, आउट ऑफ विच वन should be selected in 4C1 ways. कि भाई 4 एस के कार्ड है. क्यों 4 है? वी नो दैट ऑल डायमंड, क्लब, हार्ट एंड स्पेड, ऑल ऑफ देम हैविंग ईच एस कार्ड. हर एक के पास एक एक ही एस का कार्ड होता है, तो टोटल 4 एस के कार्ड होंगे, जिसमें से हमें एक ही चाहिए. बिकॉज क्वेश्चन सेज एग्जैक्टली 1. अगर एटलीस्ट 1 बोला होता ना तो पूरा प्रॉब्लम चेंज हो जाता, है ना.
जहां पे समझना, एक सिर्फ एग्जैक्टली वन बोलने से और एटलीस्ट वन बोलने से द होल प्रॉब्लम गेट्स चेंज, है ना। अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन से काम खत्म हो रहा है, सिंपल। सो 4C1, नाउ द रिमेनिंग 4 cards can be selected from remaining 48 cards in 48C4 ways, isn't it? देखो यहाँ पे बहुत एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए, उसमें से एक कार्ड जो है वो एस होना ही चाहिए। हम जो भी 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस लेंगे उनमें लिमिटेशन ये है कि उनमें एक कार्ड, है ना, एग्जैक्टली वन कार्ड शुड बी ऑफ एस, वो कोई भी हो सकता है, करेक्ट। मान लो कि एक कार्ड एस का है तो हमारे पास टोटल एस कितने हैं, 4 है, तो उन 4 में से एक एस आने का कॉम्बिनेशन 4C1। अब बचे कितने कार्ड्स, 48 कार्ड्स, क्योंकि आपके 52 कार्ड्स में से 4 तो एस थे, वो निकल गए क्योंकि एस रिपीट नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्टली वन बोला है, तो एस चला गया। अब बचे 48 का, उन 48 कार्ड में से हमें ये बाकी के 4 कार्ड्स लेने हैं, और ये 4 कार्ड्स मतलब सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, 48C4, करेक्ट। 10 बाई multiplication principle, the required combination is क्या आएगा, 4C1 into 48C4, 4C1 तो 4 ही होगा, 48C4 यानी 48 फैक्टोरियल अपॉन 4, और 48 में से 4 गए तो 44 फैक्टोरियल। I am leaving this calculation for you. I am not even bothering about to do this one, क्योंकि देखो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। If I simply show you something like this, तो देखो क्या होगा, 4 into 48, 47, 46, 45 divided by 4, 3, 2, 1, ये 4 तो चलो मान लिया कट भी हो गया, बट फिर भी 48, 47, 46, 45 सब कट हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में somehow, बट न्यूमरेटर में स्टिल वैल्यूज रिमेनिंग बिग, करेक्ट। ये कट करो सपोज चलो 24, ये इससे कट करोगे तो 8, अब स्टिल दिस 3 है into 8, so it is still quite a big number to multiply, and I am going to leave it for you people and you will getting the answer, है ना। It will come out some big number, 1000 या lakh में जाएगा। It is coming around 7,78,320, but it doesn't matter, आपको कैलकुलेट करनी है, that's what we are going to conclude. Am I clear? Understood this question? Now let's go for question number 7. 7 पे जाते जाते मैं इसको कर रहा हूँ रफ, करेक्ट। तो आप लोग को पॉज कर लेना होता है, अगर नहीं किया हो तो यू कैन रिवाइंड इट एंड पॉज इट एंड राइट डाउन द होल सॉल्यूशन। स्टिल आई विल कीप इट लिटिल बिट फॉर यू टू कवर इट अप। 7th, in how many ways one can select a cricket team? अरे वाह, क्रिकेट टीम आती है तो बॉयज विल बी वेरी हैप्पी, few girls also like, but boys will definitely be so happy कि in how many ways one can select a cricket team of 11 from 17 players। हमें 11 की क्रिकेट टीम बनानी है from 17 players in which only 5 players can ball, यानी कि आपके पास जो 17 प्लेयर है ना उसमें सिर्फ 5 ही प्लेयर ऐसे जो बॉल कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, मतलब कि हर एक 11 के जो कॉम्बिनेशन हम फाइंड करेंगे उनमें कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स मस्ट बी देयर। तो हमारे पास क्या है, सो टोटल 17 players are there from which 5 players can bowl. 5 players can bowl. अब क्वेश्चन में बोला है कि 11 का जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है उनमें 4 तो बॉलर चाहिए ही चाहिए एग्जैक्टली। सो 4 बॉलर्स can be selected
out of 5 bowlers in how many ways? 5C 4 ways. 5 बॉलर है हमारे पास और हमारी टीम में 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब कि 5C 4 वेज में हम बॉलर हमारे सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। लेकिन बाद में ये भी पता चल रहा है कि भाई अगर 11 में से 4 बॉलर सिलेक्ट हो गए फ्रॉम 5 बॉलर्स, तो रिमेनिंग कितने प्लेयर्स बचे? 12, क्योंकि 12 5 17 होते हैं। और उन 12 में से हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? ऑलरेडी 4 बॉलर्स तो आ चुके हैं, तो बाकी के रिमेनिंग 7, करेक्ट। नाउ द रिमेनिंग 7 players can be selected out of, अब ये भी रिमेनिंग ही 12 है ना, आउट ऑफ रिमेनिंग 12 players in 12C7 ways, है ना, कि 5 में से 4 बॉलर लेने के तरीके 5C4, क्योंकि टीम में 4 बॉलर चाहिए ही चाहिए। बॉल कौन डालेगा? फिर सब बैटिंग ही करेंगे, तो है ना, ये कोई गली क्रिकेट थोड़ी चल रही है कि यहाँ पे सारे बैट्समैन ही होते हैं, बॉलर कोई होता ही नहीं है, सब बॉल भी डाल देते हैं बाद में, करेक्ट। सो यहाँ पे हमें 4 बॉलर चाहिए ही चाहिए, दैट मीन्स 5C4। नाउ वंस वी गेट टू नो 5C4, बाद में बच गए 11 में से 7 प्लेयर, क्योंकि हमने 4 तो बॉलर ले लिए। अब वो 7 प्लेयर कहाँ से सिलेक्ट होंगे? तो क्या 5 बॉलर को छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? क्योंकि उनमें से 4 सिलेक्ट कर लेना बॉलर, हमें टीम में एग्जैक्टली 4 ही बॉलर चाहिए। तो बाकी के जो 12 बच गए उनमें से हम हमारे रिमेनिंग 7 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इज 5C4 into 12C7. 5C4 5 factorial by 4 factorial into 1 and 12 factorial by 7 factorial into 12 minus 7 5। अच्छी बात यह रहेगी कि मैं इस 5 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कट कर सकता हूं। 12 factorial can be written as 12 11 10 9 8। 7 factorial कट हो जाएगा और 4 factorial 4 3 2 1 4 3 जा 12 and 4 2 जा 8। जैसे भी कट करो सब सेम ही है भाई, कुछ अलग नहीं होने वाला। सो मल्टीप्लीकेशन कर लेना आप लोग, आई गेस, इजंट इट? छोटा ही इस बार, तो इतना बड़ा है नहीं। 11 into 10 110, 11 into 9 करो पहले, फिर 99 into 4 करो, फिर into 10 करो। सो दिस इज हाउ वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, दैट इज सिंपल थिंग विच यू पीपल कैन डू इट इन अ वेरी इजी वे। एम आई क्लियर? है ना? आई होप यू पीपल आर गेटिंग द आइडिया कि किस तरह से हम हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, है ना। See, all the problems are almost similar, correct? But the conditions you need to think. Now, what we have in 8th one, a bag contains 5 black and 6 red balls. So, क्या करेंगे? There are 5 black balls and 6 red balls. Correct? Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. हमें ये ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ऐसे जिसमें 2 ब्लैक और 3 रेड होने चाहिए। सो इट्स अ वेरी सिंपल, क्या करेंगे? 2 ब्लैक बॉल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स इन हाउ मेनी वेज? 5C2। देखो सबको आ गया, isn't it? Now and 3 red balls can be selected out of 6 red balls. We have to select only 3 out of 6, correct? In 6C3 ways, इसमें भी लिख देते ना, in 5C2 ways and 6C3 ways. So again by मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हमें सिलेक्ट करने के लिए बोला होगा ना, isn't it? क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल हम सिलेक्ट कर सकते। सो अगेन बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इज 5C2 into 6C3,
तो 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 6, 5, 4 डिवाइड बाई 3, 2, 1. So this 2 and this 2 will get cancelled. 3 2s are 6. So 5 2s are 10, 5 4s are 20. So how many ways we can select 2 black ball and 3 red balls? 200 ways. एकदम सिंपल से प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी और हमें इसमें और ज्यादा डिटेल में समझने की भी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। करेक्ट। चल नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 9। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस इधर उधर होता है। कहीं पे टीम में इतने प्लेयर्स लेने हैं, ये बॉलर्स लेने हैं, इतने बॉल सिलेक्ट करने हैं, ये कलर के करने हैं। दोज आर द कॉमन थिंग्स वी हैव। करेक्ट। इससे ज्यादा हम यहाँ पे और कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल? है ना, हमें 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। अगर 9 कोर्सेज अवेलेबल है तो क्या बोल देंगे 9C5। बट कंडीशन क्या बोला है? 9 courses and 2 specific courses are compulsory for every student. ये आपके लिए ट्विस्ट, यानी कि आपको बोला है ऐसा कि 9 में से 5 लेने हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे हैं जो कंपलसरी है। करेक्ट। तो हम बोलेंगे क्या कि देयर आर 9 कोर्सेज, करेक्ट, जिनमें से आउट ऑफ विच these are available, out of which 5 we have to select, out of which 5 we have to select, but 2 specific courses are compulsory. 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो है वो कंपलसरी है फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब ये हो गया ना कि आपको जो 5 सब्जेक्ट लेने हैं 9 में से, उनमें से 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। तो अब क्या बोलेंगे? देन द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट, रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट और 3 कोर्सेज, लेट्स से कोर्सेज जो बोला है यहाँ पे, हाँ, सब्जेक्ट में ले जाएंगे। क्या बोलेंगे? देन द रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सिलेक्टेड। कितने में से? तो क्या 9 में से 2 कंपलसरी में गए तो बचे कितने? 7। तो कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 7 कोर्सेज इन 7C3 वेज। कितने वे में कर सकते हैं? 7C3 वेज। अब यहां पे कोई मुझे बताएगा कि सम और आगे क्या करना चाहिए? आई नो दैट वी आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग अपने आप को आंसर नहीं दे सकते। शुड वी गो फर्दर देन दिस? क्या यहां से हम आगे कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हमें बोला था 9 कोर्सेज अवेलेबल है, 5 लेने हैं, जिसमें से 2 तो स्पेसिफिक है, तो आपके 2 आ गए। बचे 3 कोर्सेज जो हमने सिलेक्ट किए फ्रॉम 7, सो 7C3। करेक्ट। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल आपने क्यों नहीं किया? तो अगर करोगे भी तो क्या करोगे? 7C3 और 2 में से 2 तो सिलेक्ट ही करना है ना। एंड आई टोल्ड यू इफ यू आर सिलेक्टिंग ऑल एट अ टाइम, तो इसका क्या मतलब होता है? दिस कॉम्बिनेशन विल बिकम 1। सो इनका प्रोडक्ट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1। विल इट चेंज एनीथिंग? नथिंग। 7C3 ही रहेगा। सो 7 6 5 और 3 2 1, 3 2 6 कट, 7 5 35। तो ऐसे 35 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिनमें हमें 9 में से 5 सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन 2 कंपलसरी वाले होंगे। करेक्ट। सो बेसिकली हमें 7 में से 3 ही लेने पड़ रहे हैं, है ना। इन फ्यूचर व्हेन यू गो फॉर इंजीनियरिंग, बिकॉज एज यू आई कैन सी यू पीपल आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, सो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग फॉर engineering or BSc or something like that. Wherever you go,
in the beginning of the chapter I told you this kind of chapter is always important, not only for 11th standard, it is always important for entrance as well, है ना. चाहे वो JEE की एंट्रेंस हो या किसी जॉब की एंट्रेंस एग्जाम हो या कहीं पे इंटरव्यू की एग्जाम हो, एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. करेक्ट. सो इन दैट सिचुएशन जैसे आपको बोला जाए कि भाई सपोज इंजीनियरिंग करने के लिए आपको ऐसा बोला है कि इस साल या इस सेमेस्टर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट आएंगे, जिनमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है और बाकी के जो है ऑप्शन उनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं. तो आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 9 है, 9 में से 5 करने हैं. करेक्ट. लेकिन उनमें 2 कंपलसरी है, तो वो 2 कंपलसरी तो करने ही पड़ेंगे. तो वो 2 सब्जेक्ट आपके 9 में से निकल गए, बचे 7. अब उन 7 में से हमें और कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो टोटल 5 हो जाएंगे, 3. दैट इज वाई 7C3. और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इसीलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि 2 स्पेसिफिक जो कोर्स है वो तो कंपलसरी है, तो 2C2 1 ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आप सिंपली लिख सकते हो दस द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन, रॉन्ग वर्ड, द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इज 7C3. Thus the required combination is 7C3 and simplify this you will get 35. So there are 35 combinations in which 2 specific courses are there and remaining 3 can be selected out of 7. Am I clear? So this was the last problem of the exercise and I guess it is been very nicely done. Correct. हमने पूरी exercise को एक भी problem छोड़े बिना except question number 2 का second part, वो मैंने सिर्फ आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिया है. यू पीपल कैन ट्राई एंड यस डेफिनेटली आप अगर चाहो तो आपका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन. आई वाज थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू एट दैट टाइम ऑल्सो बट देन आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे देंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो डेफिनेटली देंगे. अब बोल दिया है, जिनको आ जाए सम हो जाए दे कैन डेफिनेटली गिव देयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एंड एज यूजुअल इफ यू अंडरस्टूड दिस all things, all problems in a very good way, then by pressing a like button you can send me a feedback. And thank you so much for